So, hello everyone. Welcome to Acha Vichar podcast. We are bringing the industry people, founders, alumni, and the students to our podcast and bringing the industry perspective to the students. So, we are basically reducing the gap between industry and the campus. So, today we have a privilege of day, 1st May 1960. It is our Gujarat Stapna Divas. We are celebrating this also. So, hello everyone, myself Kathan Shah, and I am founder of a Tune Brains community. We have two threads: Tune Brain, Achar Vichar podcast, and the Sunday Meet. Right. So let's start the podcast. So I welcome you, Mr. Keyur Rakholia, who is my mentor, who is my senior in college, and CEO and founder of a Heaven Solar. Not only the Heaven Solar, he is the founder of a multiple companies. Welcome you, Keyur bhai. Thank you, Gathan. So yeah, would you like to tell something about? No, yes, you continue first. Okay, sure. So here are some of the companies which Keyur handles right now. Satvamasi Lab, E-Yuga is for the electric vehicles, Heaven Engineering and Heaven Design, and the Heaven Solar, which is the first of his startup. Now we'll talk about our guest, Mr. Keyur So he got currently the patent in the sector of solar panels. You can see on the screen structure arrangement for the installing solar panels. So congratulations, Kirbai, for getting the patent. It is the kind of milestone we couldn't dreamed of. So recently, Kirbai also got the award on the Surya Con Award for the Solar Award. You can see, right? And Keurba and his company recently got the project at the Pune Metro and also completed of this design and consultancy for the 250 kilowatt project at the Pune Metro railway station. Let's start to talk about the journey of your college. So I have researched some of your social profiles on Instagram or LinkedIn and the Quora. So I found this photo on your Quora profile. So I can say you are the uh, silent inspirer for us. I never met you in a person. Still, you are making this much impact to like I am organizing this event and I'm doing something right. So it's all from your side, right? So here the first e-yantra competition which Keyurbai wins at the IIT Bombay. Would you like to tell us about more, Keyurbai? Yeah, sure. So, first of all, thank you, Kathan, and the team for organizing such a wonderful event. And I'm very grateful to have all the participants here and I can interact with them because I passed out in 2018. So, it is wonderful opportunity for me to interact with the college students and all the participants. सो फ्रेंड्स आज का जो सेशन रहेगा इसके अंदर आप लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह संडे को वो भी आप यहाँ पे आए फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रियली आई रियली एक्नॉलेज एवरीवन because I can clearly see that you are committed for your life career and I promise you after this session I will guarantee you कि आप आज यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूज लेके जाएंगे जो कि वो आपकी लाइफ में बिजनेस में स्टार्टअप में जॉब में करियर में 100% यूजफुल होगी so yes Katan so we were talking about our journey so in my second year of BTech electronics basically I have completed my electronics from the EC department in DDU so I have participated in this event in 2015 7 years ago so I was in the second year so उस टाइम पे आईआईटी बॉम्बे का जो ई यंत्र का कंपटीशन ये सेकेंड ईयर था कंपटीशन का
और मैं हमारा भी सेकेंड ईयर था, तो हमारी टीम पूरी ऑटोनोमस रोबोट इसके ऊपर हमने बनाया था, और वहाँ पे जाके पूरे इंडिया से ऑलमोस्ट 150 टीम्स थी, उनके साथ कॉम्पीट करके वहाँ पे 5 टीम शॉर्टलिस्ट हुई, जो कि IIT बॉम्बे हम गए, और कॉलेज ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, हमारे वहाँ पे भी मेंटर्स थे। एंड जो हमारा हमारा रोबोट था वो प्रॉपरली 100% ऑटोनोमस था। एंड उस रोबोट्स वहाँ पे जो फाइनल कंपटीशन हुई वहाँ पे भी हमने फर्स्ट रैंक अचीव किया। सो ये जो फोटो में आप दिख रहे हैं वो जो बीच में खड़े वो हमारे मेंटर है कवि आर्या सर, और आज के दिन भी वो मेरे साथ कनेक्टेड है, और वो मुझे वहाँ से गाइड करते हैं। इंडस्ट्री के जो पीपल है जो PhDs में है, अलग अलग एजुकेशन लेवल में, उनके साथ मुझे कनेक्ट करवाते हैं, और हमारा काफी अच्छा बॉन्डिंग है। तो वो आज के दिन भी वो मेरे स्टार्टअप्स के अपडेट लेते हैं मेरे से। सो दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इट हैज चेंज्ड द लाइफ एक्चुअली। सो क्योंकि वहां से जो हम नजरिया था जो देखने का स्टडीज को, इंजीनियरिंग को, वैल्यूज को, वो सारा चेंज हुआ ई यंत्रा के बाद। और ये ई यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन था, उसके बाद हमने ई यंत्रा आइडिया कंपटीशन के था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। माई थर्ड ईयर था मेरी कॉलेज का, थर्ड ईयर के अंदर वो पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और वहां पे 2 से 3 मंथ का इंटर्नशिप हुआ था IIT बॉम्बे के अंदर। सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड after yes, this one e money transferring using the fingertip. सो ये IoT बेस्ड प्रोडक्ट था, और इस प्रोडक्ट से हम कहीं से भी जस्ट फिंगरप्रिंट के थ्रू आप कहीं से भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते थे। ये उस टाइम था कि जहाँ पे अभी ऑनलाइन पेमेंट अभी स्टार्ट हो रहे थे, पेटीएम नया नया आ रहा था, भीम आया था, तो उस टाइम हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने फिंगर प्रिंट से ही पेमेंट कर पाए। हमारे पास वॉलेट भी नहीं है, कैश मनी नहीं है, कार्ड्स भी नहीं है, तो हम कैसे पेमेंट कर पाए। तो हमने एक पूरा IoT बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलप किया था जिसमें आप फिंगरप्रिंट से पेमेंट कर सकते थे। सो ये प्रोडक्ट लाइक रेडी टू लॉन्च ऐसा ही था मार्केट के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने कमर्शियलाइज नहीं किया। एंड अभी आप देख ही रहे हो कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है कि जहाँ पे आप इजीली पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। सो ये 2016 का इमेज है। मेरे साथ मेरी टीम है, संकेत भीमानी, वो IT बैकग्राउंड से है, कंप्यूटर में वो काफी अभी भी करियर में काफी आगे है। और दूसरे जो टीम मेंबर है अर्नेस्ट वेकरिया, वो भी इंटेल के अंदर है, वो मेरे साथ EC में थे। तो काफी बढ़िया टीम हमने बिल्ड किया, काफी अच्छा, मतलब कॉलेज टाइम हमने बहुत एंजॉय किया। एक एक टाइम मोमेंट हमने यूटिलाइज कर लिया, एंड आई स्टिल टुडे आई मिस those days. So that's a great, Keyur bhai. So I would like to ask one question here. So जैसे कि आपने इतना कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसको जीता भी, राइट? सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो आपके कॉलेज में आपके दोस्त होते हैं, उनको आप अप्रोच कैसे करते हो कि एक ये कंपटीशन है और मेरी टीम में आ जाओ आप, तो आप ऐसे फुल पोटेंशियल टीम कैसे बिल्ड करते हो? क्योंकि मैंने देखा है कि इवन आई हैव पार्टिसिपेट इन ई यंत्रा, सो आई हैव फेस्ड सेवरल ऑफ चैलेंजेस टू फाइंडिंग द ग्रेट टीममेट्स। सो आप कोई ऐसे कुछ बता सकते हो कि इतना स्टेप्स होना चाहिए कि आप कैसे अपने टीममेट्स को चूज कर सकते हो, इवन फॉर कंपटीशन, इवन फॉर स्टार्टअप्स, एनीथिंग? सो कैन यू टेल अस अबाउट इट? सी कथन, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने की ट्राई करो कि आपका को-फाउंडर आपको मिल जाए या फिर आपका कोई बढ़िया सा टीम मेंबर मिल जाए, राइट? इसमें कोई ऐसे कोई स्टेप्स नहीं है। नंबर 1 ये देखो, मेरी जो ये यंत्रा में हम काम कर रहे थे, ये भी मेरे दोस्त थे। अभी मेरे जो कंपनी के को-फाउंडर है वो भी मेरे रूममेट ही थे। मतलब हम 4 साल तक एक ही PG में रहते थे, और देन वो भी अलग अलग ब्रांच में, एक IT में था, एक सिविल में था। अभी जो मेरे पार्टनर से आकाश हीरपरा, वो सिविल इंजीनियर है। एक दूसरा को-फाउंडर है नीरव दानानी, वो भी IT इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो पर्टिकुलरली मैंने पर्सनली कभी ऐसे अप्रोच नहीं किया या फिर ऐसा कोई लुक इस तरह से नहीं देखा है कि ये इनका क्या पोटेंशियल है। देखो, कोई भी इंसान है, उसमें कुछ चीजें होती है अच्छी, कुछ चीजें होती है जो वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, राइट? सो 100% कोई नहीं होता है। तो जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कौन किसको किस में इंटरेस्ट है।
चलो स्किल तो सेकेंडरी मैटर है, बट उसको विलिंगनेस है कि नहीं कुछ चीजें करने की, वो पैशनेट है कि नहीं। अगर पैशन और विलिंगनेस है तो स्किल तो कहीं से भी हम सीख सकते हैं, इतने सारे सोर्स है लर्निंग के। ठीक है, तो कुछ भी सीखा जा सकता है। अगर बिजनेस बिल्ड करना हम सीख सकते हैं तो ये छोटी मोटी कंपटीशन में तो कोई वो चैलेंज नहीं है। तो उस टाइम मेरी दोनों टीम, हमने ऐसे ही था कि जितने भी मेरे साथ टीम मेंबर्स थे, इवन मालगाड़ी के अंदर भी जितने भी टीम मेंबर्स थे, वो सब 100% नहीं है। इवन मैं भी खुद 100% नहीं था, आज भी नहीं हूँ। बट एक चीज सब में कॉमन थी, वो है विलिंगनेस एंड लर्निंग एटीट्यूड, कि भाई हाँ कुछ तो करना है। वो टेक्निकल में था, बिजनेस में था, करियर में था, हाँ, बट ये ऐसे लोग थे कि उनको कुछ करना है, तो ऐसे लोग ऑटोमेटिक हमारे साथ आने लगे और साथ में मिलके प्रोजेक्ट्स पे काम किया। रात दिन मतलब रात रात भर जाग जाग करके सीखा, इम्प्लीमेंट किया, नहीं हुआ फिर सीखा, फिर इम्प्लीमेंट किया। तो ये लोग थकते नहीं है कभी, क्योंकि इनका पैशन है ना। तो ऐसे फिर टीम बिल्ड हो गई। ओके, सो हमको खाली देखना होता है कि जो हमारे दोस्त है उनमें ये पैशन है कि नहीं, हाँ, यानी पैशन है कि नहीं है। और आपको ओके, वो भी देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही चल जाएगा। आप उनके साथ रहते हो 4 साल तक, तो आपको पता ही होगा कि किन में कितना पोटेंशियल है, वो क्या करना चाहते हैं। बाकी राइट जरूरी नहीं है कि उनके पास सारी मैनेजमेंट स्किल है, फाइनेंस स्किल है, अकाउंटिंग स्किल है, क्योंकि एक बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको हर एक स्किल चाहिए, राइट। राइट राइट। सो आप कुछ मालगाड़ी के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन से ईयर में चालू किया था और लोगों को अप्रोच पहले कैसे किया था, बिकॉज इट्स अ एक्चुअल बिजनेस। यस, एक्चुअली देखो यार, बहुत सिंपल था कि हम जैसे मेरा सेकंड ईयर हुआ, ये यंत्र वाला आया रोबोटिक्स कंपटीशन। रोबोट तो बनाना था, दिक्कत ये थी कि नडियाद के अंदर कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे थे, राइट। तो उसमें बहुत स्ट्रगल रहती थी कि अहमदाबाद जाना पड़ता है, आनंद जाना पड़ता है, वडोदरा जाना पड़ता है कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेने के लिए, और ऑनलाइन आते आते एक वीक निकल जाता था। इससे अच्छा है कि मैं सैटरडे जाके संडे को फिर वापस आ जाता। तो इसकी वजह से टेक्निकल मतलब प्रैक्टिकल्स जो हो रहे थे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ, उसमें रेजिस्टेंस आ रहा था। इवन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जब हम आईआईटी बॉम्बे गए तो हमारा जो रोबोट था उसमें हमने टीन शीट मतलब पत्रे का जो आता है वैसे जुगाड़ करके एक रोबोटिक्स हैंड बनाया था, राइट। तो मेरे साथ में जो कॉम्पिटिटर थे, जो कि वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनके रोबोट्स में 3D प्रिंटिंग के इक्विपमेंट्स थे। मतलब ऐसे कुछ पार्ट्स मुझे चाहिए जो कि मेरे रोबोट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट करने के लिए यूज हो पाए। तो हमने तो पत्रे का जुगाड़ करके सब बनाया था, बट उनके पास जो रोबोट थे वो काफी एडवांस थे। मतलब वो 3D प्रिंटिंग के यूज करके आए थे, तो एक साथ दो दो ऑब्जेक्ट वो लिफ्ट करते थे। हमारा रोबोट सिर्फ एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट लिफ्ट करता था। सो ये चैलेंजेस थे कि ऐसे रिसोर्सेज की वजह से हम कंपटीशन हार जाते हैं। बट हुआ यूं कि उनके पास 2 आर्म वाला रोबोट था, हमारे पास सिंगल आर्म वाला रोबोट था, बट हमारा अल्गोरिदम काफी ऑप्टिमाइज था, तो रोबोट की स्पीड बहुत ज्यादा थी। मतलब जो रोबोट एक साथ 2 ऑब्जेक्ट उठा के वो 10 मिनट में काम करता था, वहां पे हमारा रोबोट एक ही ऑब्जेक्ट को उठा करके वो पूरा काम 5 मिनट के अंदर करता था। सो ये वहां से हमें इंस्पिरेशन मिली कि इसको कॉलेज के हर एक स्टूडेंट के पास इसका एक्सेस होना चाहिए कंपोनेंट्स का। तो फिर जैसे ही मैं वहां से लौटा और हमने ये स्टार्ट किया कि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट आके अपने कंपोनेंट्स परचेस कर सकते हैं, एंड साथ साथ में जो टीम हमारे साथ काम करेगी वो एक स्टार्टअप एक्सपीरियंस कर पाएगी, क्योंकि उसमें रियल बिजनेस होगा, रियल फाइनेंस होगा, लोग खरीदेंगे, हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उसके बैनर वगैरह हम प्रिंट करवाएंगे। तो जो भी टीम उसमें ज्वाइन कर रही है उसको एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस होगा। और ये हम ईयर ऑन ईयर पास करना चाहते थे। जैसे 2016 में हमने स्टार्ट किया, देन 17 में हमने मेरी जूनियर टीम को पास ऑन किया, देन उन्होंने उनकी जूनियर टीम को, और आज आप लोग हैंडल कर रहे हैं। Yes, I am also part of. या I was also part of the Malgadi. ग्रेट। सो आई एम रियली हैप्पी कि Great. ये आज भी इतना प्रोपोगेट हो रहा है। वैल्यूज जो है वो इवन अभी मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने आई थिंक कॉलेज जब से लेफ्ट किया तब से मेरा मालगाड़ी के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रन कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, एंड काफी आगे आ रहे हैं। तो यही मैं करना चाहता था कि ये ऐसी Yes. चीजें होनी चाहिए जो ऑटोमेटेड चलती रहे और लोग इससे वैल्यू गेन कर पाए। Actually, we can say it's a shared vision. So, uh, मालगाड़ी हमको ऐसे एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहां आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, स्टार्टअप स्किल और आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है उसको अप्लाई कर सकते हैं।
100। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कुछ नया सीखते हैं और बस सीखते ही रहते हैं। हम अप्लाई करना भूल जाते हैं हर बार। कि हम्म। अगर मैंने मेरे से कोई वीडियो देखा कोई यूट्यूब पे कोई इन्फ्लुएंसर का और किसी का भी कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो देखा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वीडियो ही देखते हैं, हम्म। उसके बाद क्या दूसरा वीडियो देखेंगे और नॉर्मल अपने जो काम होता है उसमें स्विच कर जाते हैं। पर हमको क्या करना चाहिए कि जो वो सीखते हैं तो उसको अप्लाई करना चाहिए। लर्न एंड अप्लाई, राइट। सो वही हमारा मोटो है कि थिंक एंड अप्लाई, आचार विचार वी कैन से। वेरी नाइस यार, या वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। सो कथन, इसमें बहुत सिंपल, हम मेरा सिंपल रहता है कि आपको कोई थॉट आता है और वो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है, तो आप पहले तो उसका थोड़ा सर्वे कर लीजिए मार्केट में कि इसकी नीड है या नहीं है। उसके बाद उसको रोल आउट करिए, आइडियाज को एक्शन में लेके आइए। उसके लिए आप वेट मत करिए कि इस आइडिया में इतना काम कर लूंगा 100% हो जाएगा उसके बाद मैं लॉन्च कर पाऊंगा। ऐसी चीजें होती नहीं है। इवन टिल टुडे आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस, ये 4 साल भी हो गए, फिर भी ये एक 100% नहीं होता है। ये लर्निंग 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 चलता ही रहता है। बट रोल आउट करना जरूरी है। जब भी आपको कोई लगता है कि ये चीज इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ मोबाइल ऐप है, हार्डवेयर है, कुछ भी है, तो आप उसको रोल आउट करना सीखिए कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ जाए। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने बोला कि वीडियो हम काफी देखते हैं, लर्निंग होते हैं सेशंस, तो मैं एक पर्सनली, ये जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ अभी, पर्सनली एक मैं ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास 2 बुक है। एक है आइडिया बुक, जिसके अंदर जो भी आइडियाज आते हैं वो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। मैं जो भी सीखता हूँ वीडियो से या फिर कोई मेंटर से, कोच से, वो सारी चीजें उसके अंदर रिटर्न में रहती हैं। और ये मेरा 2016 से है ऐसा बुक। और फिजिकली बुक रखता हूँ मैं, ऐसा कोई नोट्स नहीं, वर्ड फाइल नहीं, फिजिकल अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स मेरे पास रहता है। और वही मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। सो अगर आज आप मेरे साथ बैठे हो तो आपको 110% आपका नोट पेन लेके बैठना चाहिए। और एक तो ऐसा ब्लैंक बुक रखना चाहिए कि जिसके अंदर चीजें आप लिख रहे हो, जो भी हो रहा है डेट और टाइम के साथ लिख रहे हो कि आज मैंने ये सीखा, इसको मैं इस तरह से लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो वी कैन से इट्स अ जनरलिंग, राइट। हम जनरल कर रहे हैं कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस को हम आफ्टर द डे कैसे देखेंगे। एक साल पहले का जो एक्सपीरियंस था वो अभी कैसे इफेक्ट करेगा मुझे, राइट। उस टाइम का जो लर्निंग था वो अभी कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो सबको हम्म। ऐसे डॉक्यूमेंट करना आप बोल रहे, राइट, डॉक्यूमेंटेशन। जो चीजें आप सीख रहे हो, देखिए आपने कोई वीडियो देखा, ठीक है, जिसमें से कुछ वैल्यूज आपको मिल रही है और आपको लगता है कि वो मैं मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, उसको आप लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली का आपका पूरा रूटीन लिखिए, बट जो चीजें आप सीख रहे हो, जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स है, कुछ भी आप कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, उसको आप लिख लो। राइट राइट राइट। ठीक है, टेक्निकल भी चीजें सीख रहे हो तो उसका सेपरेट एक करके लिखो। सो हम ये आपके वर्कशॉप पे आते हैं कि आपने कई सारे वर्कशॉप किए ये मालगाड़ी के थ्रू और एज ए पर्सनल बेसिस। सो हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट 2 ईयर जो गए हमारे लॉकडाउन में, तो उसकी वजह से हमको ये फिजिकल वर्कशॉप का थोड़ा जो मजा है वो नहीं मिला, कह सकते हैं। तो अभी लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए जो हैंड्स ऑन लर्निंग, राइट, जो आप करते थे कि ई अंद्रा में आपने किया और इवन आपके जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे और जो स्टार्टअप थे, राइट। तो उन्होंने उसमें आपने क्या किया कि अ, जो प्रोजेक्ट्स थे वो आपने बिल्ड किए, उसमें हम्म। आपने टीम इकट्ठा की और लोगों को शेयर किया विजन कि ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज हो सकती है। तो आप ये वर्कशॉप कैसे हैंडल करते थे यार आप? लीडरशिप, हम बोल सकते हैं कि ये लीडरशिप स्किल चाहिए लोगों में। लोगों में क्या है कि नॉलेज बहुत भर 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 के है, पर उसमें क्या अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज थोड़ी આને में देर लगती है कि જવાબદારી આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે એને ઇનિશિયેટ કરવા માટે આપણે જે આમ જે પેશન જોઈએ ને કે ચલો આપણે 5 જણ ભેગા થઈને આ વર્કશોપ કરીશું, આપણામાં નોલેજ છે તો આપણે આ કરીશું, એ that's how you see the people and the leadership scale, कैसे हमको अप्रोच करना चाहिए
this field? देखो, इसमें बहुत सिंपल हमारा फंडा था, और मेरा आज भी वही है कि जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको लोगों के साथ शेयर करो। तो ये हम वर्कशॉप कर रहे थे, ये IEEE DDO IEEE का एक ब्रांच है, उसके अंडर में हमने किए थे। और हमने काफी कोशिश की है कि जितने भी हमारे जो भी हमने किया IIT बॉम्बे के हम अंदर जो भी हमने सीखा, जो कैसे रोबोट का पूरा जर्नी रहा, वो चीजें हमने लोगों को सिखाई और उनके साथ शेयर कर दिया। इवन जो ये जो रोबोट बनाया था उसका करीबन 10,000 लाइन से भी ज्यादा का कोड था, वो भी हमने ओपन सोर्स कर दिया गिटहब के थ्रू कि आप आइए देखिए क्या लॉजिक्स अप्लाई किए थे, लर्निंग करिए इसके अंदर। अब ये चीजें शेयर करने से हमें और चीजें सीखने को मिलती है। तो ऐसा मैं कभी नहीं सोचता कि ये मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स है, इसको मैं शेयर नहीं कर सकता, ये चीजें मैंने बनाई है तो इसको मैं शेयर नहीं कर सकता। तो मैं जनरली चीजें बिलीव करता हूँ कि शेयर किया जाए लोगों के साथ, तो इनको भी एक एक्सपोजर मिलता है और वो चीजें अपने से भी बेटर कर सकते हैं। सो ये हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए थे, और उस टाइम बहुत चैलेंजेस थी। जैसे कोविड गया ना, कोविड से दो चीजें होती है। एक, ये जो कोविड का वेव आया उससे नुकसान कभी काफी हुआ और बेनिफिट भी काफी हुआ। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिला, बट जो फैसिलिटीज मिली, जैसे आज हम ये गूगल मीट कर पा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तब मतलब इतने लोग फेमिलियर नहीं थे ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ, तो रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट होते थे। आप 100 लोगों के साथ अगर बैठना चाहते हो तो बहुत सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ कि कोविड के बाद ये चीजें ऑनलाइन हो गई, तो आप काफी चीजें ऑनलाइन सीख सकते हो। रही बात प्रैक्टिकल की, तो आप घर पे अपना खुद छोटा सा एक लैब बिल्ड कर सकते हो, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स है, सारे इक्विपमेंट्स आप परचेस करके रख सकते हो। कोई इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, 8-10 हजार के अंदर खुद का एक छोटा सा लैब आप घर पे सेटअप कर सकते हो। दूसरी बात, जब हम ये सीख रहे थे रोबोटिक्स, 2014 में मैंने एडमिशन लिया। 2014 के अंदर मैं रोबोटिक्स के वीडियोस देख रहा था, जब एक लाइन फॉलोअर रोबोट सबसे पहले हमने बनाया था। तो उस टाइम यूनिनोर करके सिम कार्ड आता था, जिसमें 25 kbps की स्पीड आती थी मैक्सिमम, वो भी रात को 3 बजे। उसके अलावा दिन में वो नहीं चलता था। उस टाइम यूट्यूब का इतना एक्सेस नहीं था, और फिर भी उस स्पीड पे वो लोडिंग हो रहा है, हम उसमें से लॉजिक सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास इतना इतना ज्यादा एक्सेस है इंटरनेट का कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतने ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज अवेलेबल है, IITs के प्रोफेसर के हैं, इवन हार्वर्ड के प्रोफेसर के कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप जो चाहे वो चीजें सीख सकते हो बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर। 500 रुपीज के अंदर कोर्स आ जाते हैं। तो ये एक्सेस उस टाइम नहीं था, बट ये कोविड की वजह से ये एक्सेस हमें मिल गया है। अभी इसका वैल्यू हमें करना चाहिए। अब आप जो हो, आपकी टीम है, मतलब पूरा जो अभी DDU के जो करंट स्टूडेंट है, उनको ये अगर रियलाइज हो जाता है कि ये कितना बड़ा वैल्यू हमारे पास है, जहां से हम इतनी सारी चीजें नॉलेज गेन कर पाते हैं, तो उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो 100% है। क्योंकि 25 kbps के इंटरनेट से अगर आप ये कंपटीशन जीत सकते हो, तो आप सोचिए जब इतना सारा एक्सेस है तो आप क्या नहीं कर सकते, सारे लोग जीत सकते हैं। है ना। Right, right. Great. So, yeah. Now let's move on to the questions which I have particular, because मुझे आपसे जानने में बहुत दिलचस्पी है कि what drives you as an entrepreneur, right? क्या वो एक चीज है जो आपको बर्निंग डिजायर देती है? यार बहुत सिंपल है, यही रहा है पहले से ही। मुझे प्रॉब्लम्स देख के चीड़ नहीं आती है, मुझे उसमें अपॉर्चुनिटीज दिखती है और मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो जैसे मेरी लाइफ में जो भी चीजें बनी है अभी तक, वो सारी एक चैलेंजेस थी, प्रॉब्लम्स थे, और उसको सोल्व करने में मुझे मजा आता है, और वही पैशन मुझे ड्राइव करता है ये सारी चीजें करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बेसिक एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये वाला था कि कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने मालगाड़ी स्टार्ट किया। लोगों को पेमेंट डिजिटली करने में इश्यूज आ रहे थे, तो हमने डिजिटल फिंगरप्रिंट वाला आइडिया बनाया, रोल आउट किया। नो डाउट वो इतने जो भी लेवल पे सक्सेसफुल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो चीजें करने में मुझे मजा आता है। उसके अलावा हमने ये एनर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है पूरे नेशन वाइड, कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनर्जी पर डे कॉस्टिंग उसका बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं पेट्रोल के प्राइसिंग भी बढ़ रहे हैं। तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो सोलर दिमाग में आया, और सोलर का
वो ड्राइव करता है मुझे कि इस चैलेंज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सिमिलरली डिजाइन का भी बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट हुआ, सॉफ्टवेयर कुछ प्रोडक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी ऐसे ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे जो प्रॉब्लम्स है, और इंडिया इज लाइक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि हर एक प्रॉब्लम का एक अलग स्टार्टअप या अलग कुछ सॉल्व कर सकते हैं हम उसको। तो ये चीजें मुझे ड्राइव करती है एज एन एंटरप्रेन्योर, और मैं ये करता रहता हूँ। So let's move on to the most asked question. How do you handle this all side hustle and the academics concurrently in the college time? Because ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, लोगों को करना बहुत है कि मैं अभी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, मैं अभी ये बिजनेस करूंगा, मैं अभी ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल चालू करूंगा, मैं अभी एक ये मेरे पापा का जो बिजनेस है उसमें सपोर्ट करूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों के कि पर उनको टाइम नहीं मिलता। तो आप कैसे अपना ये साइड हसल करते थे, जो मालगाड़ी हो गया, यंत्रा हो गया, इवन हेवन सोलार जो आपने अपने फोर्थ ईयर में चालू किया था, तो वो आपको टाइम कैसे मिला एकेडमिक्स से? देखिए यार, इसमें कॉलेज में पहली चीज कि हम कभी टाइम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ऐसी चीज है वो लगातार फ्लो हो रही है। तो मैंने कभी कोशिश नहीं किया है कि मैं टाइम मैनेज करूं, और आज के दिन भी मैं टाइम मैनेज नहीं करता हूं। मैं करता हूं टास्क मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेज और टास्क मैनेजमेंट डिफरेंट है। टास्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपके पास कितने वर्क है और उसकी क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, दो चीजें होती है कि कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल इन बिजनेस, एक चीज है कि मुझे क्लाइंट से पेमेंट कलेक्ट करना है, दूसरा चीज है एक डील क्लोज करना है। ये दो टास्क है। तो जो डील क्लोज करना है वो मेरे लिए हायर प्रायोरिटी वाला टास्क है, तो वो उसको मैं पहले करूंगा। तो ड्यूरिंग एकेडमिक्स भी ये हो रहा था कि मल्टीपल चीजें थी, लाइक कॉलेज सेशनल जर्नल लिखना, उसके अलावा रोबोटिक्स में नया लर्निंग करना, मालगाड़ी चलाना, IEEE वाला ब्रांच चलाना। तो काफी सारी चीजें हम पैरेलली हो रही थी, और दोस्तों के साथ हमने एंजॉय भी काफी किया। मतलब मैं पीजी में ही रहता था, और मूवीज देखना घर पे खुद, मतलब पीजी में खुद पे कुछ ना कुछ बनाना, खाने के लिए बाहर जाना, सारी चीजें थी। ऐसा नहीं था कि पूरे दिन यही कर रहे थे। बट हाँ, एक एक हमने चीज फॉलो किया कि टास्क कितने हैं मेरे पास और उसकी क्या प्रायोरिटी है। तो मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता था, मैं 100% अपना टाइम यूटिलाइज करता था। मतलब अगर मैं फ्री, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जहाँ पे मैं फ्री रहता हूँ। इधर मैं दोस्तों के साथ हूँ, कुछ एंजॉयमेंट चल रहा है, अदरवाइज मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे लैपटॉप पे कोडिंग चल रही है ना, नया कुछ सीख रहा हूँ, नया कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। बट ऐसा कोई आइडियल टाइम नहीं आता है कि मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दिया और मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी में नहीं आता है, ऐसी चीज है। और आज के दिन मैं आज आपको एक एक्सेस देता हूँ, ये एक्सेस से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो गारंटी है मेरे पास। मैं सब ये करते हैं कि गूगल कैलेंडर सारी चीजें टू डू लिस्ट वगैरह रहती है, बट मेरे पास मेरा ये डायरी रहता है। ये 2022 का डायरी है, ठीक है। इसमें डे वाइज ही चलता है ये, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक इसके अंदर कैलेंडर है। तो कल मुझे क्या करना है वो मैं आज रात को लिखता हूँ, उसके टास्क इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये पेज आप देख रहे हैं, ये प्लान है 3 जनवरी, ठीक है। तो ये जो टास्क मैंने कल रात को लिखे वो मुझे आज करना है, तो कि मुझे मॉर्निंग में ऑफिस आके पता ही रहता है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, और मेरा दोपहर तक सारा काम खत्म हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है इसमें कि इन बिटवीन कोई वर्क आ गया या फिर कुछ ऐसी चीजें आ गई कि मैं आज नहीं कर पाया, तो वो टास्क पर्टिकुलरली वो नेक्स्ट दिन फॉरवर्ड होगा, तो वो नेक्स्ट दिन आ जाएगा। तो ऐसे पूरा ईयर प्लान रहता है कि कौन से दिन पे मैं वेकेशन पे हूँ, कहीं पे हॉलीडे पे हूँ, मैरिज आ रहे हैं। तो चीजें कैलेंडर के अंदर पूरा शेड्यूल कर दिया है। इवन जो छोटे छोटे टास्क रहते हैं, जैसे बिजनेस में टास्क होते हैं जीएसटी पे करना, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करना, वो डेट पे फिक्स होते हैं, तो वो भी इसके अंदर प्लान है। तो एक भी ऐसा टाइम टास्क नहीं रहता कि जो मेरे से छूट जाए, और अगर रह जाता है तो नेक्स्ट दिन पे वो डेफिनेटली कवर हो ही जाएगा। तो ये एडवांस में प्लान होता है। जैसे ये मई मंथ है, तो मई मंथ के अंदर जितने भी मेरे मीटिंग्स हैं जो टाइम पे फिक्स्ड है वो हो गए फिक्स्ड इसके अंदर। अब उस टाइम पे आप मुझे पूछेंगे कि आप 12 तारीख को क्या कर रहे हो, तो मुझे पहले ये कैलेंडर दिखना पड़ेगा। 12 तारीख को मैंने कोई किसी को टाइम नहीं दिया है, तो उस टाइम पे फिर हम आपसे मिल सकते हैं या फिर कुछ और आगे कर सकते हैं।
सो ये कैलेंडर जो है, इससे मेरी लाइफ काफी आसान हो गई है और सारे बिजनेस मैनेज हो रहे हैं, फैमिली मैनेज हो रहा है, मैं ट्रिप पे जाता हूँ, मेरे गोल्स मैनेज हो रहे हैं, इवन मैं स्विमिंग भी सीख रहा हूँ अभी। तो चीजें होती हैं और लोगों के पास, सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं डे में, तो बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। तो बहुत टाइम रहता है, सब कुछ कर सकते हैं। सो आप ये जो डायरी और ये टास्क मैनेजमेंट आप बोल रहे हो, आप पहले कॉलेज के टाइम से ही करते थे? कॉलेज के टाइम पे करता था, बट इतना शेड्यूल टाइम में नहीं था उस टाइम पे। ओके। उस टाइम पे जस्ट डायरी रखता था। अभी ये कैलेंडर वाइज ही चलता है, मतलब आज का जो तारीख है उसी तारीख पे ये मीटिंग हमारा लिखा है कि ये 10 बजे होगा तो होगा। राइट, राइट, राइट। सो ये एक, तो हर एक लोगों के पास दो चीजें होनी चाहिए। एक अपना होता है ये आइडिया बुक, जिसके अंदर आप जो भी लर्निंग कर रहे हो वो इसके अंदर लिखो, और दूसरा होता है आपका ये कैलेंडर। ये पूरा प्लान रहता है पूरे साल भर के लिए। जैसे आपने कोई गोल लिया है कि मुझे 3 महीने के बाद ये चीज लॉन्च करना है, तो उसका पूरा प्लानिंग, जो प्री टास्क रहते हैं, एक्शन प्लान, वो पूरा डायरी के अंदर होना चाहिए। इस दिन पे मैं ये चीजें करने वाला हूँ, तभी जाके वो उस दिन पे आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो पाएगा। सो हमको ये ओवरऑल ऐसे पता चला कि टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं कुछ। हमको टास्क मैनेज करना पड़ेगा और परफेक्ट। उसमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी जो टास्क की है वो किधर है। परफेक्ट। राइट। या। ओके। सो सो ये चीज है या। ना टास्क मैनेजमेंट वाली, यहाँ पे मेरे साथ करीबन 1600 से भी ज्यादा बिजनेसमैन ये फॉलो करते हैं, और उनका लाइफ भी अच्छे से ही चल रहा है। बट ये फॉलो करना जरूरी है। तो आप एक डायरी खरीद लीजिए, इसमें कुछ नहीं होता है। 22 का कैलेंडर लेना है आपको, और हर रोज के फ्यूचर लिख देना है इसके अंदर, कल क्या करने वाला वो मुझे आज पता है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ टास्क कल कल के दिन में आता है, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। राइट, राइट। हम्म। तो अभी एकदम ऐसे सिली हम बोल सकते हैं कि कोई इतना भी लेजी है, इतना लेजी है कि उसको पता नहीं है कि अपनी प्रायोरिटीज किधर है, तो उसको कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए और कौन सी कैसा अप्रोच रखना चाहिए कि वो अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सके कि मेरे को अभी एक साल में इतना अचीव करना है, और अभी एक साल में इतना अचीव करना है, तो उसके लिए मेरे को जो गोल है ना वो चंक में डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले इतना, फिर एक महीने में इतना, फिर दूसरे महीने में इतना। वो जो लेट से कोई लेजी पर्सन है जिसको अभी इतना आइडिया नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, तो वो कैसे अप्रोच करेगा कि उसको पता भी नहीं है कि मेरा एक्सपर्टीज इसमें है। राइट। अगर आप 12th के बाद अभी फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, अभी आप जस्ट इनिशियल एक्सपीरियंस कर रहे हो कि ओ कॉलेज ऐसा भी होता है। सही है। हम मूवीज में देखते हैं कि कॉलेज तो ऐसे मजा मजे करने के लिए होता है, ऐसे पार्टीज करनी होती है। तो मूवीज ने जो हमें क्या वो पूरा एनवायरनमेंट सेट करके दिया है ना कि सबका माइंडसेट ऐसे कॉलेज कॉलेज में आने के पहले जो सेट हो जाता है ना कि पार्टीज करनी है, वो डीजे नाइट्स में जाना है और ऐसा सब हो गया। राइट। सो वो उतना ही लिमिटेड है, उसके आगे वो सोच ही नहीं पाते। तो कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो उसके आगे सोच पाए कि हमें भी कुछ अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम उसे। राइट। सो आपने सही बोला कि कॉलेज टाइम पे ये चीजें करनी करनी है लोगों को, और करनी भी चाहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। सो बट क्या होता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में, क्या अचीव करना है, क्या आपके गोल्स है, ठीक है। तो वो आप एक बार क्लियर हो जाते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपके टास्क मिल जाएंगे और उसकी प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो आपको क्या सेट करना है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करना है कि भाई 2030 में मैं क्या करूंगा, वो नहीं पता है। 2022 का ही प्लान कर रहा है। जैसे मैं आपको मेरे गोल का चार्ट दिखाता हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। ये मेरा 2022 का है। तो ये गोल देखो क्या लिखा है। पहले तो मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है बिजनेस गोल। तो इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं: वर्किंग विथ 30 फॉरेन क्लाइंट्स, लॉन्चिंग ऑफ क्विकेस्ट प्रोडक्ट, एंड 2 CR मतलब 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करूंगा मैं। तो ये क्लियर है, ए बिजनेस गोल हो गया। एक होता है हेल्थ गोल, जिसमें लिखा है कि वेट गेन करना है, आइज का विजन इंप्रूव करना है। थर्ड है फैमिली गोल, 2 दिन फैमिली के साथ ट्रिप रहेगा, 5 दिन कपल ट्रिप में जाऊंगा और पेरेंट्स के साथ रहूंगा। क्रेजी गोल, इसमें भी क्लियर लिख दिया है कि मुझे ये फ्यूचर में करना है।
ये क्रेजी गोल वाला है कि ये मतलब फ्यूचर में कभी भी हो सकता है ऐसा कि लिस्टिंग करना है हेवन सोलर को BSE पे, NSE पे। और कुछ पर्सनल गोल्स हैं जहाँ पे मैं अपने मेंटर्स को फॉलो करूँ, उनके साथ उनकी बुक्स रीड करूँ और कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन लेके आऊँ मेरी लाइफ के अंदर। सो ये मैंने लिखा, इसको प्रिंट किया, मेरे घर पे लगा दिया, ऑफिस पे लगा दिया, और ये मेरे नजर के सामने रहता है। अब ये चीजें मैंने कर दिया, इसके बाद क्या होगा कि मेरे आगे के जो टास्क है वो ऑटोमेटिक प्लान हो रहे हैं कि ये देखो अभी मैं ट्रैक कर पाता हूँ ना कि ये 5th मंथ स्टार्ट हो गया, मई मंथ, तो लास्ट 4 मंथ के अंदर इस डायरेक्शन में मेरी क्या प्रोग्रेस है मैं ये देख सकता हूँ, और आगे का मेरा जो स्केड्यूल है इसी हिसाब से बनेगा। राइट राइट। सो क्रेजी गोल रखना जरूरी है क्योंकि वही आपको मोटिवेट करता है। अ, लोग क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है। यस। सो आपके जो भी गोल्स है उसको क्लेरिफाई करिए, उसको एक सेगमेंट में बनाइए कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरा ये गोल है। देखो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस 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 और करियर जॉब जॉब जॉब, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ और भी चीजें हैं, लाइफ बैलेंस में चलेगी तभी लाइफ जीने का मजा आएगा, जिसके अंदर फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, आपके और कुछ आइडिया हो सकते हैं, और कुछ चीजें आपको पसंद है, आपकी कुछ हॉबीज हो सकती है, तो वो चीजों को बैलेंस करके हमें चलना चाहिए। ये मेरा 2021 में भी बनाया था, और फिर इसका और भी डिटेल में प्लानिंग हम करते हैं कि इसको डिटेल के अंदर माइलस्टोन वाइज पूरा प्लानिंग रहता है। बट ये मोटा मोटी मैंने ये बताया कि गोल बनाइए और सबके साथ शेयर करिए। देखो भाई 2022 का मेरा ये गोल है, मैं ये करने वाला हूँ, आप ऑटोमेटिक अकाउंटेबल हो जाएंगे क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया। ये मैंने अभी जो शेयर किया वो मेरे सोशल मीडिया पे भी है। राइट, यानी आप जो जो भी आपका गोल होता है वो आपको ओपनली शेयर करना होता है। कोई टेंशन नहीं है। इससे क्या आप अकाउंटेबल हो जाते हैं, राइट, इवन हाँ। इफ इट्स सिली। लोगों को कल को फर्क नहीं पड़ता आप कि मुझे आपका पूछ गोल क्या पाएंगे है ना रतन, आप इनिशियली। मुझे पूछ पाएंगे कि केयूर भाई ये 2 करोड़ का क्या हुआ फिर। मैंने राइट राइट। Okay, so the answer of this question is uh, do the task management, decide the priorities, and declare your goals, even if it's silly or a crazy. So यही मेरा वो इनिशियल में मालगाड़ी के जो पोस्टर फोटो के टाइम क्वेश्चन था कि हाउ डू यू अप्रोच पीपल फॉर योर मोटिव ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोगों को होता है कि भाई नहीं करना, हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या करेंगे। हाँ, तो उनके साथ मत काम करो, फिर जिनको सोल्व करना है उनके साथ करो। सॉल्व करना है मेरे को। हाँ, तो हम जैसे कि आपने बताया कि हाउ टू बिल्ड अ टीम, सो वी ऑलरेडी नो दैट हु आर द टीममेट्स, बट वी हैवंट पीक्ड येट। हमने खाली चूज नहीं किया, हमको पता है कौन है, पर हमने चूज नहीं किया। वो चूज करने की देरी है खाली। आई कैन से ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द अदर। दिस क्वेश्चन इज माय पर्सनल वन। आप कैसे ये डायलेमा से बाहर आते हो कि आपको जॉब करना चाहिए कि स्टार्टअप करना चाहिए। ये लोगों में बहुत ऐसे कंफ्यूजन है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरे लाइफ में अभी मैं स्टार्टअप करूंगा तो इवन इट कैन फेल, राइट। ओके। बट वो जॉब में क्या सिक्योरिटी ढूंढने चले जाते हैं कि भाई जॉब है, सिक्योर है, ऑल गुड। सो हाउ दे डिफरेंशिएट द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर। तो आप कुछ कह सकते हैं कि क्या करना चाहिए देखिए इस डायलेमा से बाहर आने के लिए? पहली चीज, अभी अभी थोड़ा क्या है कि चेंज हुआ एटमॉस्फेयर, मतलब लोगों को लगता है कि स्टार्टअप स्टार्टअप ही सब कुछ है। तो नंबर 1 ऐसा कुछ नहीं है। जॉब में जो लर्निंग्स है वो स्टार्टअप्स में नहीं है, स्टार्टअप्स में जो लर्निंग है वो जॉब के अंदर नहीं है। तो मैं आज भी फील करता हूँ कि मैंने जॉब नहीं किया तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं मेरे दोस्तों से सीखता हूँ कि भाई आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, HR मैनेजमेंट कैसे होता है। तो वो चीजें अगर मैं जॉब कर लेता तो मुझे काफी काफी डिटेल में पता चल जाता कंपनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि आज मेरे पास नहीं है, तो मैं बाहर से सीख रहा हूँ। और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आज ही होगा इसके बाद कभी होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज स्टार्टअप हुआ 2022 में, वो 2030 में भी होगा, 2040 50 चालू ही रहने वाला है। तो ऐसा कोई लेट अर्ली ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। इस चीजों से हमें बाहर आ जाना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2 है, आपने पूछा कि जॉब करे स्टार्टअप करे, तो ऐसे डिसीजन, ये दो पाथ वाले तो बहुत आएंगे लाइफ में ऐसे क्वेश्चन। एम टेक कर लो, फॉरेन चला जाओ, जॉब कर लो, स्टार्टअप कर लो, ठीक है। लाइफ में आएगा यस। अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज कर लो, ये लाइफ पार्टनर सही रहेगा, ये रहेगी सही, बहुत चीजें आएगी, बहुत सारे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। बट मैं ये बिलीव करता हूँ और मैं ऐसे डिसीजन लेता हूँ कि जब भी कोई दो पाथ मेरे सामने होते हैं, राइट, तो मैं ये पहले सोचता हूँ कि मुझे कौन सा बेटर लग रहा है, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, राइट। अंधाधुंधी कोई डिसीजन नहीं लेना है। मेरे मेरे करियर में, मेरे जो एटमॉस्फियर के अंदर, मेरे पास जो फाइनेंस है, मेरी जो टीम है, मेरा जो आइडिया है, उसके ऊपर मुझे अगर 100% बिलीफ आ गया, 100%, नॉट 99, 100% आ गया, तो वो चीज मैं कर लेता हूँ। पर एक बार मैंने वो पाथ सिलेक्ट किया, राइट, कि मुझे स्टार्टअप करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब उसके अंदर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर वो 100% में उसके ऊपर फोकस करके लगातार एक मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, कुछ ना कुछ करना है उसके अंदर। बट ऐसा कभी थॉट नहीं आना चाहिए इससे अच्छा रहता कि मैंने जॉब कर लिया होता, ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। अगर आप जॉब में जाते हो तो वहां पे ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए कि मैंने, इससे अच्छा होता ये जॉब, या फिर दूसरी जॉब, या फिर मैं फॉरेन चला गया होता, या फिर मैंने बिजनेस कर लिया होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक डिसीजन लिया, वो 100% आपको एक्सेप्ट करना है, आपको बिलीव करना है, और वही चीज करना है, और आप उसके अंदर 100% सक्सेसफुल होंगे। ऐसा, आप मुझे बताइए कौन से फील्ड ऐसे है कि जहां पे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं? जॉब में कौन सक्सेसफुल नहीं होता है? सुंदर पिचाई है, वो जॉब करता है गूगल के अंदर, 300-400 करोड़ राइट, का राइट। सैलरी है, तो क्यों सक्सेसफुल नहीं? बिजनेस में सक्सेस हर जगह पे होते हैं लोग, हर जगह पे सक्सेसफुल लोग, फॉरेन जाके सक्सेसफुल होते हैं लोग, मास्टर्स करके सक्सेसफुल होते हैं लोग, पीएचडी करके सक्सेसफुल होते हैं लोग, स्टार्टअप करके होते हैं, बिजनेस करके, फादर का बिजनेस करके, हर जगह पे सक्सेस है। बट वो आपके ऊपर है कि आप कैसे देख रहे हो उसको। आपको सक्सेस होना है कि नहीं होना है। फिर आप सोचेंगे कि इसमें तो फेलियर है, जॉब में तो ऐसा है, हर जगह पे भी फेलियर है। लोग फॉरेन जाके फेल होते हैं, आपने एग्जाम्पल देखे, लोग बिजनेस करके फेल होते हैं, लोग जॉब करके भी फेल हो जाते हैं। तो हर जगह पे हर चीज है। हमें ये देखना है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। हम मैंने ये डिसीजन लिया है, तो उसको मैं बिलीव करता हूँ 100%, यस, इसको मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ, यस। तो क्या दिक्कत है? आप सक्सेसफुल आपको होना ही है, आप हो ही जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है। राइट। लोगों को क्या कि ऐसे जो इंडिविजुअल बिलीव होता है ना कि मैं इस आइडिया में बिलीव करता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि इनिशियल में थोड़ा और बिलीफ लेने के लिए वो लोग उसके जो आजू बाजू जो लोग हैं उनको पूछते हैं कि वैलिडेट करते हैं कि ये मेरा आइडिया अच्छा है ना, ये मेरा आइडिया अच्छा है ना। तो उसमें अगर किसी ने ऐसा बता दिया ना कि ब्लंटली कि नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो पूरा अपना पाथ ही चेंज कर देते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई आप आपने चेंज क्यों किया? जो अभी आप करंट जो कर रहे थे जो पहले वो बहुत अच्छा था, अभी आपने वो परस्यू किया होता एक साल, उसमें टाइम दिया होता, तो अभी आप कुछ अलग ही होते। देखो, तो इसके अंदर आइडिया टेस्टिंग में बहुत सिंपल है। इसमें आप कुणाल शाह का एक वीडियो देख लेना, डेल्टा 4 करके है, कि कोई भी आइडिया है वो कितना वर्क करेगा, वो वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। दूसरा एक ये वीडियो देख लेना। उसके अलावा अम, जब भी कोई आप नया चीज करना चाहते हो, उससे पहले एक मार्केट सर्वे कर लीजिए। बिफोर यू एक्चुअल वर्क ऑन द प्रोडक्ट, आप एक मार्केट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के साथ करिए, ठीक है। कुछ छोटा सा बना लीजिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपीटीज, और लोगों से मिलिए और उनके ओपिनियन जानिए। उसमें हो सकता है हम्म। कि 10 लोग ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% लोग यही कहेंगे कि ये चलने वाला है, क्योंकि वो अपना ओपिनियन दे रहा है ना, उसको तो नहीं पता है। आपको तो जनरलाइज सर्वे करना है, ठीक है। और उसमें भी एक चीज होती है, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी में आता है ये चीज, कि आपको टारगेट ऑडियंस के साथ मार्केट सर्वे करना है। जैसे आज मैं सोलर के बिजनेस में हूँ, और मैं ऑयल इंडस्ट्री के साथ अगर मैं उनको सर्वे करने के लिए जाता हूँ कि भाई सोलर अच्छा है, तो वो बोलेगा सोलर अच्छा नहीं है, कोल अच्छा है। राइट। तो वैसे है। राइट। हाँ, तो उसमें ये जो आपने बताया ना कि लीन स्टार्टअप, तो एरिक राइस करके जो ऑथर है, तो वो बुक मैंने पढ़ी थी, और उसमें ऐसा भी बोलते हैं कि लर्निंग वैलिडेट होना चाहिए। यस। आप सीख बहुत रहे हो, पर उसका वैलिडेशन किधर है? हम्म। राइट। वो क्या बोलते हैं कि फीडबैक लूप होना चाहिए एक,
learn, apply and feedback. इसको And ये BML आपको बोलते हैं, बिल्ड मेजर एंड लर्न। ये साइकिल चलती है, या बिल्ड मेजर एंड लर्न, ये साइकिल चलती रहती है। आप कुछ चीजें बिल्ड करो, उसको मेजर करो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फिर उसमें लर्निंग करो, फिर बिल्डिंग करो, ये चलता रहता है। जो फीडबैक होता है वो क्या उसको एज अ फ्यूल कंसिडर करना चाहिए जो आपका जो प्रोडक्ट है और सर्विस है, बिकॉज विदाउट फीडबैक आप कह सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट चल ही नहीं रही। हम्म। फीडबैक मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि लोगों को कैसा लग रहा है प्रोडक्ट और सर्विस। राइट। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ यू बिल्ड अ नेटवर्क इन कॉलेज दैट हेल्प्स यू टू ग्रो। राइट, ये टीम की बात आपने बता दी अच्छे से कि वो हमारे दोस्त ही होते हैं, पर आपने जैसे बिजनेस में नेटवर्किंग बहुत जरूरत चीज है कि एक दूसरे की जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है वो कॉम्पनसेट करते हैं। और इवन इन अ कॉलेज किसी और को एक स्किल अच्छा आता है, जैसे कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, पर वो आपको जानता नहीं है, वो आप उसको जानते नहीं हो, पर आपके जो इनिशिएटिव है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें उसकी नीड है। तो हाउ यू अप्रोच पीपल, ऐसा नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हो कि आपको लेट्स से कि कोई अनजान इंसान कॉलेज में आया और उसको जानना है कि इस कॉलेज में जितने भी कुछ आइडिया और फाउंडर्स यानी कुछ स्टार्टअप और कुछ बिजनेस कर रहे हैं ऐसे साइड हसलिंग, उसको जानना है, तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे सबसे पहले? प्रोफेसर को और स्टूडेंट को, और कोई ऐसे कर रहा है पर जिसकी से क्रेडिबिलिटी इज कॉलेज में बन गई है कि भाई आपको कुछ स्टार्टअप के बारे में जानना है, केवल भाई को आप मिलो। यानी ऐसे हम कैसे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं कि कोई भी ऐसे चलता इंसान आपको बता दे कि हाँ आपको ये बात जाननी है, इनको मिलो, ये बात जाननी है, इनको मिलो। हम्म। देखो, इसका कोई प्रॉपर वेज नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं पता चल सकता, क्योंकि हर एक साल बैच पास आउट हो जाते हैं। आप मुझे कैसे जानते हो? थ्रू इंस्टाग्राम और राइट। आपका ज्वाइंट माल गाड़ी। हाँ। राइट, तो चीजें ये होती है कि शेयरिंग, मैंने कुछ शेयरिंग किए थे 2016 के अंदर, जिससे आप अभी आज की तारीख में कोरा से वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, आप कुछ कर रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो नया, उसको शेयर करो लोगों के साथ। अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन पे शेयर करो, कोरा पे शेयर करो। जो जो बंदे, जो इंसान इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, जिनको स्टार्टअप्स करने हैं या फिर जिनको कुछ नई चीजें बिल्ड करनी है, वो भी सेम चीजें देख रहे होंगे, वहां से कनेक्ट हो जाएंगे। वो जैसे कॉलेज आएंगे, वो आपको ही पता, आपको ही मिलने आएंगे। राइट राइट। शेयर करिए चीजों को। हम्म। राइट। सो आप शाय मत रहो, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ, नॉलेज आप शेयरिंग, साई मतलब नॉलेज शेयरिंग वाला एटीट्यूड रखो। आपने कुछ बिल्ड किया है तो उसको पुट करो, कॉलेज के ग्रुप के अंदर शेयर करो, देखो भाई मैंने ये बनाया है। ठीक है, आप उसमें एक्सपेक्ट मत करो कि अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बुरा रिस्पॉन्स आता है, वो बात की बात। आप पोस्ट करो उसको। right, we are just putting our idea or stuff or a project so people can see. यस, After what they made, we don't, it doesn't matter. We यस, are यस। putting it, that's our effort, right? So that's all from my side. Now let's start the open discussion. So if anyone having question, they can ask in the chat box or unmute themselves and ask directly to the Keval bhai. So I'll ask, no problem. Uh, so the question is, what was your journey after graduation to till this data? I mean, how did you start this company? Yeah, Keval bhai, I also want to know how you started your company in the last year, because I can say you have done intensive in your own company, right? In the last year. So how did this happen? Tell us about it. सो 2016 के बाद जब मेरा हमारा पहले आइडिया ये था कि होम ऑटोमेशन की प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों के घर के एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर काम करने वाले थे। और उस आइडिया पे हमने आईबीएफ स्टार्टअप स्कूल करके है लखनऊ के अंदर, तो Okay. उन्होंने हमें वहाँ पे सिलेक्ट किया आइडिया को, और 1.5 महीने तक, 1.5-2 महीने तक उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि बिजनेस में क्या चीज़ें होती है, जिसके अंदर विजन, मिशन, फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट, कस्टमर टारगेट, कस्टमर अप्रोच, एवरीथिंग। एक लीन स्टार्टअप का एक कोर्स वहाँ से सीखा हमने। और उसके बाद फिर कॉलेज में आ गए, एंड तब ये प्लेसमेंट्स वगैरह चल रहे थे। और साथ में सोलर का भी मार्केट धीरे धीरे बूम हो रहा था वहाँ पे।
तो मेरे जो अभी के को फाउंडर है नीरव दानानी, तो उस टाइम उन्होंने एक सोलर का कोर्स ज्वाइन किया था। तो हमने बैठ के ये प्लान किया कि आप सोलर का तूने सीखा है और मैंने ये बिजनेस का प्लानिंग सीखा है, तो चलो कुछ साथ में मिलके ट्राई करते हैं। और फैमिली को बताया। उस टाइम फैमिली का ये रिस्पॉन्स था कि आप इतना अच्छा कर रहे हो अपने करियर में टेक्निकली, तो आप पहले एक जॉब अच्छे से कर लो, आपको जॉब मिल भी जाएगा, और मिल भी रहा था। तो उनकी बात सही थी, हमने इनवैलिडेट नहीं किया कि हमें यही करना है या फिर हम तो इसमें ही कुछ करेंगे। बट हमने ये रिस्पॉन्स दिया कि अभी हमारी एज उस टाइम कुछ 22 के आसपास थी, राइट। हमने ये बोला कि ऐसे अभी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और हम घर से एक पैसा नहीं मांग रहे, आप हमें सिर्फ टाइम दीजिए 2 साल का, कि 2 साल के अंदर हम कुछ करना चाहते हैं। अगर 2 साल के अंदर कुछ नहीं होता है हमसे, देन हम खुशी खुशी जो भी आप बोलेंगे वो कर लेंगे। तो बोला ठीक है, आप घर वालों को वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना कि आप घर से पैसे नहीं ले रहे हो, आप करो जाओ जो करना है, ठीक है। राइट। तो हम फिर सूरत आ गए और हमने ये कंपनी स्टार्ट की, हेवन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। उसका पूरा बिजनेस प्लान बनाया, कौन कस्टमर्स है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो करीबन 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए था, 4 लाख डिपॉजिट था गवर्नमेंट का। तो हमने ये एक्शन में ले लिया। हमें नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, हमें सिर्फ यही पता था कि हमें स्टार्टअप करना है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उस टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे आई क्रिएट है, जियोसेक है। तो हम वहाँ जा करके पिच करने लगे कि थोड़ा फंडिंग मिल जाए कहीं से। बट वो कुछ हो नहीं रहा था, 3-4 महीने तक ये सब चला। बट हमारे एक फ्रेंड्स के फ्रेंड है, वैसे रिलेटिव है, उन्होंने देखा आइडिया और उन्होंने हमारी प्रोफाइल्स देखी कि कॉलेज में ये लोग क्या कर रहे थे, और उन्होंने हमारे पे बेट लिया कि हम इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो 8-10 लाख रुपए वहां से आए और वही स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया, पूरा ऑफिस सेटअप किया। 8-10 महीने तक कोई बिजनेस नहीं था, बट उसके बाद विद इन 1 ईयर 1 CR का टर्नओवर हुआ। जो इन्वेस्टर थे उनके पूरे अमाउंट को रिटर्न किया, उससे डबल उसको एक प्रॉफिट दिया, एंड वो हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए पार्टनर्स भी बन गए कंपनी में। एंड ये जर्नी स्टार्ट हुई, एंड धीरे धीरे मार्केट के अंदर जैसे हम काम करते गए, वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, ये चैलेंज है, इस चैलेंज को इससे सोल्व कर सकते हैं। तो वैसे वो बिजनेस अलग से स्टार्ट किया। और लास्ट ईयर मुझे थॉट आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए कंट्री में, इसके अलावा नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी भी सेम वो स्पीच दे रहे हैं वहाँ से। तो ईवी का स्टार्ट किया और गवर्नमेंट ने सब्सिडी स्टार्ट किया, तो वो भी एक अच्छा सेट हो गया। तो ऐसे कोई एकदम 100% प्लान्ड जर्नी नहीं रहा है, अनप्रेडिक्टेबल है। बट हाँ, हमारी ओर से एक चीज श्योर थी कि हमें 100% यही करना है। 2 साल चले गए, फैमिली भी खुश हुई कि हाँ ठीक है, अच्छा कर रहे हो, अभी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जर्नी रहा। राइट राइट। सो आपने कहीं एक एक रात में पूरा बिजनेस प्लान तो नहीं बनाया था, पूरा 1 साल लगा था, राइट? कि हाँ, ऐसे परफेक्ट करने में उसको, कि अभी राइट नाउ वी विल डू दिस, तो कितना पूरा पता स्टार्ट करना स्टेबिलिटी है। क्या चलाते हैं, एक बिजनेस में मिनिमम 3 साल चाहिए। तो 2017 से 2020 तक तो मतलब एक ही बिजनेस में स्टेबिलिटी ला रहे थे, और बीच में कोविड भी आ गया, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था। राइट राइट। सो हाउ डिड यू मैनेज इन द कोविड टाइम? कोविड टाइम पे देखो, जो घर से हो रहा था वो चीज हम करने लगे थे। जैसे डिजाइन का काम था, फिर इंश्योरेंस का काम था। मतलब हम फ्री कभी नहीं बैठे हैं। जब भी कोई चैलेंज आए, इवन स्किल लर्निंग सीखने का स्टार्ट कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग सीखे, वेबसाइट डेवलपमेंट करना सीख लिया। तो काफी टाइम था, काफी रिसोर्सेज थे, और नए नए आइडियाज पे काम करना चालू कर दिया। कभी ऐसा नहीं आया दिमाग में कि ये कोविड आ गया, अब तो बिजनेस बंद हो जाएगा, सैलरी कैसे पे करेंगे। इवन हमारे ऑफिस के अंदर उस टाइम पे 20 एम्प्लॉइज थे, तो सबके सैलरीज भी कंटिन्यू ही रहे, कभी एक महीना भी कभी बंद नहीं रहा है। ओके, सो लेट्स टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। अच्छा, हमारे साथ प्रोफेसर मार्मिक सर भी हैं। हेलो सर, you Hi, can Keyur. unmute. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग सर। Keyur, it's a nice session so far. I have one question from my side. If you can throw some light for the youngsters for that. यस यस, डेफिनेटली।
Okay. So So we have the question is, many times seeing the success story of startups, sometimes students are losing faith in education, exams, seminars, project implementation, even the classroom interaction, sometimes even the uh, presence in the classroom. So this fantasizing stories are attracting them a lot, but there is always other side also. So I have seen you as one of the uh, interactive student in my classes. So you were there always in the class. You always marked your presence over there. So if you can throw some light that both the things should be going parallelly, or they should be completely eyeing on one of the aim. So you can share something over there. सो वंडरफुल सर, ये होता है कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आ जाती है कि स्टार्टअप कर लेते हैं, एंड जॉब में तो कुछ है ही नहीं, पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ देयर शुड बी ऑलवेज अ प्लान बी, राइट। और प्लान बी ये होता है कि आपका एजुकेशन, आपके बेसिक्स। आज तो ये बिजनेस अच्छे से चल रहा है, कल को बिजनेस में कुछ डिफिकल्टी आ गई। हमने काफी ऐसे बिजनेस देखे हैं, स्टार्टअप्स जो बहुत सक्सेसफुल होके भी जीरो पे आ गए, ऐसे तो काफी एग्जांपल है। और जो लोग सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं उनको भी पता है वो ऐसा होता है बिजनेस के अंदर। सो देयर शुड बी ऑलवेज अ प्लान बी विथ अस, और प्लान बी यही होता है कि आपके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, राइट। तो मेरा प्लान भी सिंपल था कि अगर मेरा बिजनेस या स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता है तो मेरा एकेडमिक इतना लेवल पे तो होगा कि मुझे कहीं पे एक डिसेंट जॉब मिल जाएगी। तो मैं ये करता था कि जब मैं क्लास में बैठता हूँ तो उस टाइम पे, उस 1 घंटे में जो भी मिल रहा है वैल्यूज, वो मैं ले रहा था। तो और आज के दिन भी अगर ये सारे बिजनेस भी फेल हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो आता ही है, माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड्स, कि मेरा को जॉब का टेंशन नहीं है। तो वो प्लान बी ऑलवेज होना चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली है उसका भी आपको टेक केयर करना है, आपके खुद के भी कुछ एक्सपेंसेस है, तो वो वहां से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस पे ही डिपेंड रह सकते हो। सो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सो ये जो जो हम सीख रहे हैं बचपन से आज तक, जितना भी हमने कॉलेज तक सीखा है, वो सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल है और वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। इवन इवन जो मैं क्लास में सीखता था वो बिजनेस में भी काम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जॉब में या फिर अलग फील्ड का है तो काम नहीं आ सकता, वो आज के डेट में भी आ सकता है। जैसे मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी तो मुझे नहीं पता था कि आज हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होंगे, तो वो आज वहां पे काम आ रहा है कि सॉफ्टवेयर के कोडिंग कैसे होते हैं, गिटहब्स क्या होते हैं, फिर ये इसको कमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। इवन आप नहीं मानेंगे, मुझे जर्नल बिल्कुल लिखना पसंद नहीं था, सबको आपको भी लग रहा होगा, बट आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जर्नल लिखने से क्या बेनिफिट होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज का होना चाहिए। हमारी कंपनी में हर एक चीज का एसओपी है, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसेस, की कैसे आपको काम करना है, कैसे डिलीवर करना है। तो वो चीजें कहाँ से आती है, वो वहां से ही आई। जर्नल के डॉक्यूमेंटेशन से पता चला कि ऐसे ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे फिगर्स डालनी होती है, इसको ये रेफरेंस देना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। okay. So, Kiyur bhai, can you tell us about the companies which you are handling right now in one by one? First is your Heaven Solar, right? So it's in a renewable energy sector. यस यस। So, सो एक्टिवली मैं सारी कंपनीज नहीं देख रहा हूँ। हर एक कंपनीज में टीम बिल्ड किया है, हर एक मतलब 80-90% वो अपने आप चल रही है, वहां पे 10-20% हमारा ग्रोथ एफर्ट रहता है। सो हेवन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, हु इज लीड बाय माय पार्टनर आकाश इरपरा, वहां पे हम अदानी के और हेवल्स के चैनल पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अदानी सोलर मॉड्यूल सेल करते हैं, लोगों के घर पे जाके सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। तो उसमें मेरा मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, अदरवाइज वो टीम पूरा हैंडल करती है। मैं जो अभी करंटली देख रहा हूँ वो हेवन डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ पे हम सोलर प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि कम कॉस्ट में ज्यादा एनर्जी कैसे लेके आए। तो रिसेंटली जो पेटेंट भी ग्रांट हुआ उसी कंपनी से हुआ, तो वो मैं देखता हूँ। और थर्ड इज तत्वमसी लैब्स, वहां पे हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस को सेल्स ग्रोथ के लिए काम आएगा। तो उसका काम वहां पे चल रहा है, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम करता हूँ। फोर्थ इज
ई-युगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो वो मेरे पार्टनर नीरव करके हैं, वो देखते हैं पूरा, उसमें मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्व हूँ। बाकी वो काइंड ऑफ क्या है कि ट्रेडिंग बिजनेस है कि आप शोरूम से सेल कर रहे हो, उसमें मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर काम करते हैं। एंड नेक्स्ट हेवन इंजीनियरिंग है, वो एक वीएमसी मशीन है। वीएमसी मशीन मतलब मैकेनिकल साइड का एक रहता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स डाई मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हम बना सकते हैं, तो वो एक अदर पार्टनर देख रहे हैं। Right. So we can say you are in a now multidisciplinary. एक्चुअली ये करना पड़ता है कि अभी अभी जो सिनेरियो है ना, करंट सिनेरियो, ऐसा नहीं है कि बिजनेसेस 15-20 साल के लिए चलेंगे। अभी इतना फास्ट इनोवेशन हो रहा है कि बिजनेस 1-2 साल के अंदर पुराना हो जाता है। 1-2 साल के अंदर इतने कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और इतना जो नॉलेज अवेलेबल है, कुछ सीक्रेट नहीं रहता है, तो आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है इसके अंदर। So आप ऐसा कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि कोई अभी ऐसा स्टार्टअप करने का सोच रहा है, तो वो अभी फील्ड चूज करने का ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा फील्ड चूज करें? नहीं, ऐसे फील्ड मत चूज करो, हर एक नहीं, फील्ड में। हाँ, हमारा क्वेश्चन इस डिफरेंट है कि अलग अलग फील्ड हम ले रहे हैं, राइट? सो इनिशियल में सारे फील्ड में घुस जाए कि पहले कोई एक जगह एक्सपर्टीज डेवलप करे, फील्ड अलग अलग फील्ड में घुसे? ऑब्वियसली पहले एक से ही स्टार्ट करना चाहिए एट ए टाइम, और मैं आज भी तारीख पे एक ही बिजनेस देखता हूँ। राइट, ओके। हर एक के लिए टीम है तभी बिजनेस अलग स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज आप एक साथ 4-5 चीजें नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 1। दूसरा है कि आप ऐसे फील्ड वाइज मत सिलेक्ट करिए बिजनेस को, आप चैलेंज वाइज सिलेक्ट करिए। इसके अंदर ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, आप इसको ये सॉल्यूशन के साथ हम सोल्व कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन फिर हार्डवेयर से आता है, सॉफ्टवेयर से आता है, प्रोडक्ट से आता है, सर्विस से आता है, वो डजंट मैटर। ऐसा भी नहीं जरूरी है कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी सारी स्किल आप में हो, वो आपको फिर लोगों के पास स्किल होनी चाहिए, वो आपको हायर करनी। So don't try to do everything at once, just try to do one thing and then expand. Okay, so we have another question in chat box. Arjun Patel. ગુડ મોર્નિંગ કથન ભાઈ. Good morning. ડાઉટ, હા કેયુરભાઈ ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. ડાઉટ એવો હતો કે જ્યારે આપણે કોલેજમાં જ્યારે આવ્યા, ફર્સ્ટ યરમાં આવ્યા, તો એ વખતે એવું હતું કે ગેટની પ્રિપરેશન કરીશું અને પીએસયુઝમાં મતલબ એવો એક ગોલ હતો કે એમાં જોબ લઈએ. અને ધીરે ધીરે પછી કોલેજ ચાલુ થઈ, એમાં ધીરે ધીરે એક્સપ્લોરેશન મળ્યું એટલે ખબર પડી કે આવું ડિઝાઇનિંગનું પણ એક ફિલ્ડ આવે છે જેમાં તમે સોફ્ટવેરમાં કામ કરીને અલગ અલગ તમારી ક્રિએટિવ ડિઝાઇન બનાવી શકો છો, અને એનું આખું એક બહુ મોટું ફિલ્ડ છે તમે ફ્યુચરમાં. તો હવે ગેટની પ્રિપરેશન કરતા થોડા મતલબ આગળ આવી ગયા છે, તો ગેટની પ્રિપરેશન મતલબ ચાલુ છે, તો એ પાથને બંધ કરીને આ, કારણ કે આ ડિઝાઇનિંગનો પાથ મને એકદમ સારો એવો ગમે છે, અને એમાં મને લાગે છે કે મને મતલબ કોઈ પણ દિવસમાં અડધી રાતે પણ ઉભો કરીને પૂછે કે ભાઈ ડિઝાઇનિંગ કરવું છે, મતલબ આ બનાવવાનું છે, તો મતલબ ઈચ્છા થાય છે કે હા ચાલો કરી દઈએ, કંટાળો નથી આવતો. તો આ પાથ મેં જે બીજો મને પછીથી મળ્યો છે જે ડિઝાઇનિંગ વાળો, એને ફોલો કરવો કે જે પહેલેથી જેમાં હું આગળ વધી રહ્યો છું તો એ ફોલો કરવો? એમાં થોડું આગળ પણ મે બી વધારે જતા રહીએ તો ગેટ વાળો જે પાથ મેં પહેલેથી ફોલો કરતો આવતો એ કરવો કે પછી આ ડિઝાઇનિંગ વાળો પાથમાં ફોલો એમ કરવું એમ? અચ્છા, અર્જુનભાઈ તમે કયા યરમાં છો અત્યારે? હું સેકન્ડ યરમાં છું. સેકન્ડ યરમાં જ, ઓકે ફાઇન. સો હજુ તમારી પાસે ઇનફ ટાઈમ છે. સો હું પર્સનલી એવું બિલીવ કરું છું કે તમને જે પેશન હોય ને એ ફોલો કરો. પૈસાની ચિંતા કે જોબની ચિંતા કે પીએસયુમાં વધારે સક્સેસ છે, આ તે દેટ ઇઝ સેકન્ડરી મેટર. તમને પેશનેટ છે કે ડિઝાઇનિંગની અંદર મને આગળ વધવું છે, તો એટલો મોટો ગોલ સેટ કરો કે તમે ટેસ્લા માટેનો ડિઝાઇનિંગ કરશો, એનો સ્પેસ રોકેટ બનાવશો, પછી એની સામે પીએસયુ કંઈ નથી. રાઈટ? સો ઇફ યુ આર રિયલી પેશનેટ, તમને જે વસ્તુ કરવી ગમે છે ને એ જ વસ્તુ જો તમારી પાસે છે ને, તમે એની અંદર એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઉટપુટ આપશો. બાકી તમને કોઈ, હું કમ્પ્યુટર ઉપર એક્સેલ શીટ લઈને બેસાડી દઈશ કોઈ પીએસયુમાં, અથવા તો અમુક મારા ફ્રેન્ડ્સ એવી જોબ કરે છે કે ત્યાં ખાલી જસ્ટ એમને મીટર મોનિટર જ કરવાના હોય. બોઇલર ચાલે છે, બોઇલરનું પ્રેશર કેટલું છે, જો એ કાંટો પ્લસ થઈ જાય આમ જરા બી, તો એને ત્યાં જઈને ઇન્ફોર્મ કરવાનું, બસ આવી જોબ બી હોય. So we can say do what you love. યસ, ફોલો યોર પેશન. અને એવું કોઈ જ નથી, એવું એક ફિલ્ડ જ નથી કે એમાં ઓછી સક્સેસ ને વધુ સક્સેસ હોય. તમે એક્ઝામ્પલ જોજો તમારા ફિલ્ડની અંદર, હાઈલી સક્સેસફુલ લોકો એ ફિલ્ડની અંદર હશે. પીએસયુમાં બી હાઈલી સક્સેસફુલ હશે. Arjun is in the Malgadi team right now, and he is in the mechanical department. Okay, right? Great, Arjun. Thank you, sir. Okay. Next one, Ankush. Okay, so first of all, my name is Ankush Larana, and I am from IT department.
So my question was that if you face a challenge in your business or whatever, so how did you approach it? અચ્છા સી ચેલેન્જ વગર તો કંઈ ચાલવાનું નથી. ચેલેન્જ ઇઝ લાઈક પાર્ટ ઓફ લાઈફ. મને પર્સનલી એવું લાગે કે જ્યારે કંઈ ચેલેન્જ નથી ને આમને બધું સ્મૂથ ચાલે છે ત્યારે કંઈક મોટી ચેલેન્જ છે. સો ચેલેન્જ આવે છે, ચેલેન્જને એઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી, તમે એને ઓપોર્ચ્યુનિટીની નજરથી જુઓ કે આ ચેલેન્જ છે આને કઈ રીતે સોલ્વ કરવી. સપોર્ટ લેતા શીખો. મતલબ એ ફિલ્ડમાં કોઈ એક્સપર્ટ છે તો એમને પૂછો, ભલે તમારા જુનિયર સિનિયર છે, ડઝન્ટ મેટર. સપોર્ટ લેવાનો કે ભાઈ મને આ ચેલેન્જ છે તો મને આને કઈ રીતે સોલ્વ કરવી, રાઈટ? અને તમારી પાસે જે ચેલેન્જ આવશે ને 100% એ પહેલા કોઈ પાસે આવી જ ગઈ હશે, અનલેસ કે તમે કઈ રીયુઝેબલ રોકેટ બનાવતા હોય તો પહેલા કોઈને એ બી કોઈને આવી જ ગઈ હશે. સો એ ચેલેન્જના ઓલરેડી સોલ્યુશન્સ બધા છે જ. સો એવા કેસની અંદર તમે ચેલેન્જને એઝ એ ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે લો. અને સેકન્ડ ઇઝ જે લોકોને એમાં નોલેજ છે એમનો તમે સપોર્ટ લો. Thank you. એટલે જે ઓલરેડી અવેલેબલ છે નોલેજ એને કન્ઝ્યુમ કરો. કે તમારું જે નેટવર્ક છે, તમારા જે ફ્રેન્ડ્સ છે એમને પૂછો કે તમારી સાથે આવી કોઈ ચેલેન્જ આવી હોય તો એ જે લર્નિંગ્સ છે કે જેનું જે આઉટપુટ છે એ શેર કરો. તો એમાંથી આપણે કંઈક નવી વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું કે આપણો બધાનો અપ્રોચ અલગ અલગ હોય. હું કંઈ અલગ રીતે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું, મારો ફ્રેન્ડ કોઈ અલગ રીતે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે, તો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ થઈ જશે ત્યાં. ટાઈમ તો મેટર નથી કરતો, એક દિવસ પણ લાગે, વર્ષ પણ લાગે. Hello, good morning, Keyur. Keyur, bye. અરે સર આવું નહીં કહો. Fine. Nice to see lot of changes in you, in your thoughts. યસ સર. Fine. Okay, that's very good. I think you have learned a lot in business. Nice to hear words like Lean, Six Sigma, and all those stuff, which is most important. I think now, I think we can have your one session, at least in our college itself, to think for these startups. Instead of online mode, we can have you in our on offline mode also 100%. to give the okay. So Anytime Very happy is to- there anything for me, I will be there. હમણાં જ દલાલ સર જોડે બી વાત થઈ હતી મારી. એમને બી Fine. કીધું કે એની ટાઈમ આવી શકશો તમે. ઓકે અને હું તો એની ટાઈમ મને કંઈક યાદ આવે તો હું તો મારા સ્ટુડન્ટોને ફોન કરું જ છું, ભલે સ્ટુડન્ટને ગમે કે ના ગમે. એનું એક્ઝામ્પલ જ હતું, અત્યારે ઇવેન્ટ હતી તો આઈ કોલ્ડ યુ ઓન સન્ડે એન્ડ યુ રિસ્પોન્ડેડ ઓલ્સો. યસ Fine. યસ. And thanks for that. અરે સર એની ટાઈમ. Okay. Thank you, sir. We are also, as a Achar Vichar podcast, we are also planning to do such offline meetups in future. We'll move on to that in the last. Okay. So, anyone having question, they can ask. Hello, am I audible? Yes, yes. Okay, I am sister of K. Rakhalia. Great. Okay. And આમ કહી શકું કે એની જે હેવન ડિઝાઇન કંપની છે એમાં એઝ અ બિઝનેસ ડેવલપર પણ વર્ક કરું છું અને મારું બેકગ્રાઉન્ડ એગ્રીકલ્ચર છે. સો લાઈફમાં 360 ડિગ્રી જે છે ચેન્જીસ આવી ગયા છે બહુ મસ્ત રીતે. અને બધું જે કહી શકાય કે કેરભાઈને લીધે જ છે, જે કાંઈ મોટિવેશન ઇન્સ્પિરેશન આજે મતલબ જે કાંઈ હું છું એને લીધે જ છું. તો મારે કેરભાઈને એક પર્સનલી એ સવાલ પૂછવો છે, મતલબ ઘણી વાર મેં પૂછેલો છે પણ છતાં આજે બધા સાથે છે તો મને એમ લાગે કે પૂછી લઉં કે સક્સેસ જે આપણે કહીએ એની એક સેન્ટેન્સમાં ડેફિનેશન શું છે? સક્સેસની ડેફિનેશન છે જ નહીં. સક્સેસ એટલે કેવું કે તમને મજા આવવી જોઈએ, બસ. તમે જે કરો છો એમાંથી તમને મજા આવવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ સક્સેસ. હું જે કરું છું એ મને મજા આવે છે. હવે આનું કોઈ લેવલ નથી કે ભાઈ ચલો આ આટલું તો આ સક્સેસ, આટલું તો આ સક્સેસ. આ જે કરીએ છીએ એ આપણને મજા આવે છે. કોઈને અલગ જોબમાં મજા આવતી હોય, કોઈને ટીચિંગમાં મજા આવતી હોય, તો ધેટ ઇઝ સક્સેસ. એવરીવન ઇઝ સક્સેસફુલ. થેન્ક યુ સર. Question is for Keyur Bhai. What is your inspiration? How you take? Because you are giving so much inspiration for us, but how you take? I mean, તમે ક્યાંથી inspiration લો છો? એ મોટો question છે.
અરે સિમ્પલ છે યાર, યુ આર ધ એવરેજ ઓફ 5 people અરાઉન્ડ યુ, રાઈટ? સો હવે બે વર્લ્ડ થઈ ગયા છે, એક ફિઝિકલ વર્લ્ડ અને એક વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડ. વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડના જે મેન્ટર્સ છે એ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. ધેટ ઇઝ નાઉ વી હેવ એક્સેસ, ધીસ ઇઝ હ્યુજ પોસિબિલિટી. તો ત્યાં અમારા 5 મેન્ટર તમે તમારા સિલેક્ટ, જેમ કે સંદીપ મહેશ્વરી છે, વિવેક બિંદ્રા છે, કૃણાલ શાહ છે, અંકુર વારીકુ છે. સો આઈ એમ કનેક્ટેડ વિથ ધેમ, આઈ એમ પાર્ટ ઓફ ધેર સર્કલ. એ લોકો નથી ખબર, બટ આઈ એમ પાર્ટ ઓફ ધેર સર્કલ. Right. So it's a circle that they share, but they don't know who are you, but you know them. એવી રીતે તમને બીકોઝ એમના વિચારો છે, એમનું જે આ લોકોનું 5 લોકોનું સર્કલ આપણી સાથે હોય તો એમનું થોડુંક તો આપણામાં આવી જ જાય. એમની સાથે રહી એટલે આપણે એની એવરેજ આઉટ થવા લાગીએ. અને સિમિલરલી ફિઝિકલ વર્લ્ડની અંદર તમે એવા લોકો સાથે જે પોસિબલ હોય એવા લોકો સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતા રહો, એમને મળતા રહો, તો તમે એમની જોડેથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ શકો. મારા 5 લોકોમાં તમે પહેલા છો. થેન્ક યુ. ઓકે યાર, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ ઇવેન્ટ એન્ડ આઈ હોપ કે લોકોને આમાંથી વેલ્યુઝ મળી હશે. અને ઇન કેસ કોઈ બી સ્ટુડન્ટને ક્યારે બી કંઈ બી હેલ્પ સપોર્ટની જરૂરિયાત હોય, એની ટાઈમ you can always connect to me. I'm available on LinkedIn, or you can share my personal number or email ID. Thank you very much, Keyur bhai, joining our session. I know you are so much busy in your work, but thank you very much. Thank you, Gatan. Thank you so much for this wonderful event. Yes. Oh, bye bye. Bye bye.